Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Governmental Guru. Today, I will discuss about Central Administrative Tribunal (CAT). It is part one related to the legal matters. You know, syllabus is there in NVS and KVS principal exam, and also it is useful for other principal exam and also for other central government exams. In this part, I will discuss 60 MCQs. So definitely the session would be interesting one, and you can collect many information about CAT. You know that when our grievance, basically a central government employee, central government civil services employee, when your all grievance is exhausted in the department, then you go to the Central Administrative Tribunal. Okay, CAT. So it is part one. Later on also I will bring some videos related to the legal matters. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Next, you just follow my Facebook page, same Asid Governmental Guru. If you follow me, then very systematically you can get all the video links. And my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubts. So now I am going to discuss Central Administrative Tribunal with around 60 MCQs. Definitely the session would be interesting one. So my friends, please with patience, you listen the video and collect information. Question number one. The Central Administrative Tribunal, CAT, was established under which act? Right? Four options are there. 42nd Amendment Act 1976, Administrative Tribunal Act 1985, 44th Amendment Act 1978, Civil Procedure Code 1908. Option B is the correct answer. It is Administrative Tribunal Act 1985. Okay, amendment if question is asking, it is 42nd Amendment 1976. Okay, but here it means on the basis of Administrative Tribunal Act 1985, the Central Administrative Tribunal was established, okay, to resolve the grievances of service related matters of central government employees. So question number 2. The Central Administrative Tribunal was set up to adjudicate disputes and complaints related to criminal matters, election disputes, service matters of public servants, interstate water disputes. Option C, it is service matters of public servants. You know, basically CAT, Central Administrative Tribunal, only for the civil employees of central government department, only the civil employees of central government department. And if you consider the defense department, again civil employees of the defense department. Okay, all India services. Okay, and in some cases according to the government notification for some public sector undertakings also. Okay, so service matters, suppose related to the suspension, related to the penalty, related to the pay. Okay, so on these matters, actually if the grievance is exhausted in the department, then ultimately the central government employees, basically civil services employees, go to the CAT for justice. So option C is the correct answer. It is service matters of public servants. Option C is the correct answer. Question number 3. The jurisdiction of CAT covers employees of private sector employees, central government and union territories, state governments, foreign governments. So the jurisdiction of CAT covers employees of central government and union territories. Okay, for state government, state administrative tribunal is there. Okay, state public service tribunal is there. Only for central government and union territories. Okay, the jurisdiction of CAT, already I told. First you give the grievance to your department. If all type of grievance is actually exhausted, completed, then you central government employee, basically civil services employees, they go to the central government. They go to the CAT, okay, for justice related to all service matters.
Suppose any disciplinary proceeding, any related to the suspension, related to the penalty, related to the pay, related to the promotion. In every matter, suppose first you give the grievance to your department. If all type of grievances actually completed, exhausted, then the central government civil services employee go to the CAT for justice. Right? Option B is the correct answer. Question of 4. What is the tenure of the chairperson of the Central Administrative Tribunal? So चेयरमैन का जो टेन्योर है आपको याद रखना है. 4 options are there. Option D is the correct answer. It is 5 years until the age of 68, whichever is earlier. Okay, tenure is 5 years. Okay, or until the age of 68. Okay, minimum age actually for qualification and for applying for chairperson post is minimum 50 years. याद रखना है, it is a minimum. Okay, 50 years. Basically, judge of high court, sitting judge or retired judge of high court, they can apply. Okay, so option D is the correct answer. It is the tenure and up to what age actually the chairperson can render his or her service in CAT. Option D is the correct answer. Question number 5. What is the tenure of the administrative and judicial members of the Central Administrative Tribunal? Okay, so you know that now basically CAT 19 benches are there. 19 benches are there. Principal bench is in New Delhi. Principal bench is in New Delhi. Every bench, one administrative member and one judicial member. Okay, must be appointed. Okay, one bench. So tenure, if it is asking, again same. Now it is 5 years. Okay, or until the age of 65. Option A is the correct answer. The administrative and judicial members of the Central Administrative Tribunal, it is 5 years or until the age of 65, whichever is earlier. Related to the chairperson, until the age of 68 years. But in case of administrative and judicial members, it is 5 years or until the age of 65, whichever is earlier. Right? Option A is the correct answer. Question number 6. The Central Administrative Tribunal is bound by the Code of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure, Principles of Natural Justice, none of the above. The Central Administrative Tribunal is bound by Principles of Natural Justice. Okay, option C is the correct answer. Okay, CAT is bound by Principles of Natural Justice. बहुत कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इसको याद रखना है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. The CAT was set up, right, as a part of implementing which recommendation? Okay, Malemat Committee report, Sarkaria Commission report, Swarna Singh Committee recommendation, Mandal Commission report. Actually, the CAT was set up due to the recommendation of Swarna Singh Committee recommendation. Option C is the correct answer. ये भी बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इसको याद रखें. स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन, CAT was set up. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे. अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ CAT कैन बी मेड टू. ओके, यदि CAT का जो ऑर्डर है उसका अगेंस्ट में आप अपील करेंगे तो कहां पर जाएंगे? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अंडर जुडिशियल रिव्यू, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ CAT कैन बी मेड टू बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट आप हाई कोर्ट को जाएंगे, रीट पिटिशन देंगे, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द CAT. और यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो अल्टीमेटली यू गो टू द फॉर जुडिशियल रिव्यू यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट. तो बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 9. How many benches does the Central Administrative Tribunal currently have in India? कितना जो CAT का कितना बेंचेस अभी फंक्शनल है इंडिया में? तो इसमें मैं बोल चुका हूं अभी 19 बेंचेस है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अभी 19 बेंचेस एक्चुअली फंक्शनिंग अक्रॉस इंडिया. ठीक है,
Question number 9, option C is the correct answer. Question number 10, the CAT does not have jurisdiction over members of the All India Services, employees of the Supreme Court and High Courts, officials of the Central Secretariat, employees of Central Public Sector Undertakings. इसमें जो क्वेश्चन है देखिए, मैं बताया था जो कैट बेसिकली आपको रिमेंबर करना है, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और गवर्नमेंट नोटिफाई करता है सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑल्सो. It means for any type of suppose petition they can take to the CAT. It is employees of सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. मगर एम्प्लॉइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ये कैट का ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे. तो यहां पर वही दिया है, द कैट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर एम्प्लॉइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. याद रखिए, जैसे जो स्टाफ है पार्लियामेंट का, जो स्टाफ है स्टेट लेजिस्लेचर का, जो स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट का, जो स्टाफ है हाई कोर्ट का, वो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कैट के अंदर. कैट के अंदर है सिविल सर्विसेज जो है, ओके, सिविल सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके, सिविल सर्वेंट्स, डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविल सर्वेंट्स है, और ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट. और गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, जब गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि सम एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक, सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके, नॉट ऑल, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, एम्प्लॉइज ऑफ सम PSUs, ओके, so they are coming under jurisdiction, okay, they are coming under jurisdiction of the CAT. तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. क्वेश्चन नंबर 11, the Central Administrative Tribunal was established as per the provisions of Article 315 of the Indian Constitution, Article 323A of the Indian Constitution, Article 368 of the Indian Constitution, Article 226 of the Indian Constitution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 323A of the Indian Constitution CAT was established, ओके. आर्टिकल नंबर पूछेगा तो आर्टिकल 323A. तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the administrative tribunals were introduced in India as a result of which constitutional amendment? Which constitutional amendment क्वेश्चन पूछेगा तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1976, ओके, क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, इसको याद रखना है. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछेगा तो 42nd अमेंडमेंट, बहुत पॉपुलर अमेंडमेंट है, ओके, 1976. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ओनली जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, लॉयर्स एंड सिविल सर्वेंट्स. आपको याद रखना है जो कैट में दोनों मेंबर रहते हैं, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, okay, option B is the correct answer, both judicial and administrative members. Option B is the correct answer. Question number 14, the Central Administrative Tribunal is not responsible for adjudicating disputes of members of the Indian Administrative Service. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एम्प्लॉइज है वो तो ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं कैट का. मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस नहीं आएंगे, एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी नहीं आएंगे. तो यहां पर जो होगा बोथ बी एंड सी होगा, क्योंकि मैं बताया था कि यहां पर जो दे दिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से कि सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एम्प्लॉइज ऑफ सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे आर कमिंग अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कैट. मगर नॉर्मली मैं आपको इसके ऊपर बता चुका हूं, यहां पर जो है बेसिकली CAT is not responsible for adjudicating disputes of both B and C. ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए लागू नहीं है, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस की एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसमें भी अपॉइंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट। मगर यहां पर जैसे कैट का जो चेयरपर्सन मेंबर्स है उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, क्वेश्चन 16 को चलेंगे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। 4 ऑप्शन है। एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। कैट इज कंसिडर्ड ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इट इज ए क्वासी जुडिशियल basically organization, okay, to resolve the grievances of the public services, okay. So option B is the correct answer. Question number 17. Central Administrative Tribunal Act 1985 came into force on, okay, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 27 फरवरी 1985, 1 जनवरी 1986, 1 जुलाई 1985, 1 जनवरी 1985। ये तो मालूम है 1985, क्योंकि जो बेसिकली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1985 है, तो 1 जुलाई याद रखिए, ओके। कैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1985। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. A person shall not be qualified for appointment as the chairman of the Central Administrative Tribunal unless he is or has been a judge of a high court, a judge of a Supreme Court, a judge of a first class magistrate court, any of the above। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको याद रखना है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चाहे रिटायर्ड हो कि सिटिंग जज हो, जज ऑफ ए हाई कोर्ट वो क्वालिफाई करता है चेयरमैन पोस्ट के लिए, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। इफ फाइनल ऑर्डर हैज बीन issued by the department regarding to the grievance of employee, then the applicant can submit application in CAT within dash from the date of that final order। देखिए, कोई भी सर्विस मैटर में ग्रीवांस है, फर्स्ट आपका डिपार्टमेंट को जाइए, ठीक है। फर्स्ट आप ग्रीवांस सपोज पे के ऊपर है कि सस्पेंशन है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है कि पेनाल्टी है कि सपोज प्रमोशन के ऊपर है कि कोई भी चीज के ऊपर आपका ग्रीवांस है, आप डिपार्टमेंट को जाइए। जो जितना ग्रीवांस है वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक फाइनल ऑर्डर मिलेगा आपका डिपार्टमेंट से, ओके। जब फाइनल ऑर्डर मिलेगा उसका 1 ईयर के अंदर आपको कैट को जाना है डायरेक्टली। आप इमीडिएटली एक्चुअली you cannot file the case actually in the CAT. First you go to your department and lodge your grievance, okay. So many options are there. First you go for all options, grievance options. If it is exhausted, then you get the final order from your department. Then from the final order, जिस डेट में फाइनल ऑर्डर मिला उसका 1 ईयर के अंदर आपको कैट जाना है जस्टिस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और इसमें और एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप ग्रीवांस दे दिया, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपका डिपार्टमेंट में ग्रीवांस दिया मगर 6 मंथ्स में रिजॉल्व नहीं हुआ, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया, वो रिजॉल्व नहीं हुआ, ओके। मैं लिख दिया यहां पर ऑन रिजॉल्व, ओके। कितना टाइम, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया मगर आपका जो ग्रीवांस आपका डिपार्टमेंट में दिया था वो ऑन रिजॉल्व है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तब जब जिस डेट में 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रीवांस डालिए। यदि 6 मंथ्स के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, जब जिस डेट में 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाइए, वो भी है। अदरवाइज आप जब फाइनल ऑर्डर आपको मिलेगा आपका डिपार्टमेंट से, फाइनल ऑर्डर मिलेगा तो उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे।
इन विच ईयर वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड? ये बहुत इजी है। तो 1985 आप जानते हो, कैट केम इन टू फोर्स ऑन जुलाई 1 1985। और जो ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट आया था वो 1985 का है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सा मिनिस्ट्री में एक्चुअली कैट फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। कभी कभी हम सोचते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नो, कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, नो। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कैट इज फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, क्योंकि कोई भी पब्लिक सर्विस मैटर में आपका डिपार्टमेंट से आपको जस्टिस नहीं मिला तब आप कैट को जाओगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 22 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये एल चंद्र कुमार याद रखिए, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कैट्स डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय। पहले ओनली जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में था। डायरेक्टली जब हम कैट का ऑर्डर अगेंस्ट में हम अपील करेंगे तो डायरेक्टली था इनिशियली सुप्रीम कोर्ट को हम जा रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचा कि डायरेक्टली मेरे पास आना ये सही नहीं है। तो तब एक केस फाइट हुआ, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिया कि यदि कैट ऑर्डर में आप सेटिस्फाई नहीं हो तब आप अपील करो हाई कोर्ट में, रीट पिटिशन डालो हाई कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, तब हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट को जाओगे। तो यही है। मगर पहले जो इनिशियली क्या था, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हम जाते थे, अपील करते थे, मगर अभी नहीं। ये बेसिकली अभी जो है जुडिशियल रिव्यू बाय बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द कैट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट, यहां पर ऑप्शंस दिया है, हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। आप कैट में एप्लीकेशन फाइल करने के पहले, जस्ट प्रायर ऑफ द एप्लीकेशन फाइल विद द कैट, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट यूज द एग्जिस्टिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल mechanisms within their department, only approach CAT if they have received a final order on their grievance, if their appeal or representation has remained unsolved within 6 months। मैं बताया था क्लियरली। फर्स्ट आप आपका डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, जितना भी ग्रीवेंस ऑप्शन है वो सबको एग्जॉस्ट होने दो, कंप्लीट होने दो। फिर आप अल्टीमेटली जब आपको फाइनल ऑर्डर मिलेगा उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाएंगे। और एक है ओनली अप्रोच द कैट इफ दे हैव रिसीव्ड अ फाइनल ऑर्डर ऑन देयर ग्रीवेंस, ये करेक्ट है। जब आपको फाइनल ऑर्डर आपका डिपार्टमेंट से मिला, ओके, तब आप क्या करेंगे, आपका पूरा ऑल टाइप ऑफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, तब आप 1 ईयर के अंदर आप कैट में जाएंगे। और एक है थर्ड, इफ देयर अपील और रिप्रेजेंटेशन हैज रिमेन अनसॉल्व्ड विद इन 6 मंथ्स, ये है, मैं बताया था, यदि आप ग्रीवेंस अपील किया, रिप्रेजेंटेशन दिया आपका डिपार्टमेंट में, विद इन 6 मंथ्स वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, ठीक है, जब 6 मंथ कंप्लीट होगा उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाएंगे। तो तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ऑप्शन सी। तो इसमें मैं और एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इसको भी डिस्कस किया, इसको ध्यान दीजिए। ओके, फर्स्ट वन, आपको आपका डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर मिला, क्योंकि जितना ग्रीवेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया, जब फाइनल ऑर्डर मिलेगा उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाएंगे। सेकेंड चीज ये है, आप अपील किया आपका डिपार्टमेंट में, आप रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर 6 मंथ्स में वो जो अपील किया था कि रिप्रेजेंटेशन दिया था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो 6 मंथ जब कंप्लीट हो रहा है उसका 1 ईयर के अंदर आप कैट जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कैट। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स कैट का ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, एम्प्लॉइज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वो ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस नहीं आएंगे।
ऑफिसर सब रेलवे आएंगे, रेलवे पोस्टल जो भी डायरेक्ट डिपार्टमेंट वो सब आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज एम्प्लॉइज। ओके, ऑल इंडिया सर्विस आएगा, मगर डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी जुरिस्डिक्शन में आएंगे। ओके, मगर आर्म फोर्सेस नहीं आएगा। और गवर्नमेंट यदि नोटिफाई करता है कि सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे आर एम्प्लॉइज आल्सो कमिंग अंडर कैट, वो आएगा। यदि नोटिफिकेशन में नहीं है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एक्सक्लूडेड मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 को चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बी अपॉइंटेड एज ए जुडिशियल मेंबर ऑफ द कैट? मैं बताया था कि एवरी कैट, जो कैट का बेंच है, प्रिंसिपल बेंच तो न्यू दिल्ली में है, अदर जगह में बेंचेस है, 19 बेंचेस अभी फंक्शन कर रहा है। इसमें जुडिशियल मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, तो मिनिमम एज 50 ईयर्स जो अप्लाई करोगे मेंबरशिप के लिए कैट में, मिनिमम एज 50 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कैट? कैट का फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस वी.एस. मालीमथ, जस्टिस एस मोहन, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट चेयरपर्सन जस्टिस के मैथ्यू। ठीक है, जब कैट एक्चुअली केम इन टू फोर्स ऑन जुलाई 1, 1985, फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे वो जस्टिस के मैथ्यू थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 को चलेंगे। Who recommends the appointment of the chairperson of the Central Administrative Tribunal? में बताया था जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स है, उनको अपॉइंटमेंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मगर रिकमेंडेशन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट लेवल में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसमें जो चेयरपर्सन है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, वो भी, उनका भी अपॉइंटमेंट होगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मगर रिकमेंडेशन किसका होगा? कंसर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहां पर जो ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 को चलेंगे। कैन द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट्स? अभी एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अभी हम सुना कि आप सपोज कैट का ऑर्डर में सेटिस्फाई नहीं है और आप अपील करोगे तो आप हाई कोर्ट को जाओगे, रिट पिटिशन डालोगे। तो एस, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एस, आफ्टर द एल चंद्र कुमार केस वर्डिक्ट। पहले क्या था, सपोज आप कैट का ऑर्डर का एगेंस्ट में जाओगे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, मगर एक एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कि इफ द कंसर्न एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द कैट, देन ही और सी कैन सबमिट रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। Under the Administrative Tribunal Act 1985, appeals against CAT's orders initially could be made only to initially actually हम जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, मगर एक एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप नहीं आएंगे। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द कैट, देन यू सबमिट द रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट। मगर पहले इनिशियली पूछा है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। इनिशियली जो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के पहले डायरेक्टली आप कैट का सपोज ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करेंगे तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, which part of the constitution provides for the establishment of administrative tribunals including CAT? Part 14, part 15, part 20 एंड पार्ट 17 ऐसे दिया है आपको। यहां पर जो ऑप्शन ए है पार्ट 14 ए, याद रखना है, ए पार्ट 14 ए। ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडिंग कैट? ओके, ये पार्ट है पार्ट 14 ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी 50% क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, मैं बोला था कि 60 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। So again, I please my friends subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely, I bring some good videos so that you share my channel, so that other government employees and those are preparing for the central government exam also, they can get benefit. Please subscribe my channel, Asit Governmental Guru. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे।
Administrative tribunals like CAT derive their powers mainly from the Parliament of India, the Finance Ministry, International Law, the Election Commission of India. कैट का जो पावर है मेनली इट इज कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी सपोज अमेंडमेंट पास होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास होगा, तो कैट डिराइव देयर पावर्स मेनली फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट. क्वेश्चन 32, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज इट्स प्रिंसिपल बेंच लोकेटेड इन. आपको 19 बेंचेस है, प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली, ये बहुत कॉमन है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन 33 को चलेंगे. इन द एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस. यहां पर जो एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यदि आपको कैट का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करोगे तो वह हाई कोर्ट आओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आओगे. फर्स्ट हाई कोर्ट आओगे, हाई कोर्ट का जजमेंट में आप सेटिस्फाई नहीं हो तब सुप्रीम कोर्ट आओगे, यही था. मगर पहले क्या था, ये जो केस के पहले डायरेक्टली जो कैट का ऑर्डर था उसका अगेंस्ट में हम अपील करते थे सुप्रीम कोर्ट में. तो यहां पर जो आंसर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन 34 को चलेंगे. Which of the following statements about the central administrative tribunal is false? हम देखेंगे जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स यहां पर चेक करेंगे. कैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, हम जानते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये करेक्ट है. कैट कैन हैंडल सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये भी करेक्ट है. हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर डिस्प्यूट्स है, ओके, इट कैन हैंडल बाय कैट. CAT decisions are not subject to judicial review by high courts after the L चंद्र कुमार केस, ये गलत है. क्योंकि जो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप फर्स्ट हाई कोर्ट जाएंगे. ठीक है, देन हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए जाओगे. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट वन, आर नॉट दिया है. CAT decisions are not subject to judicial review. CAT consist of judicial and administrative members, ये भी करेक्ट है. तो यहां पर जो फॉल्स है ऑप्शन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 को चलेंगे. अपील्स अगेंस्ट CAT's डिसीजन कैन नाउ बी हार्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए फर्स्ट आप हाई कोर्ट जाएंगे और देन हाई कोर्ट में आप सेटिस्फाई नहीं मिला आपको, तब आप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओगे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए. टू स्टेटमेंट्स गिवन, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, चेक करेंगे. CAT orders can be challenged in the high court through a writ petition. Challenged in the high court through a writ petition under the articles 226 and 27 of the constitution of India. ये करेक्ट है. यदि आप CAT ऑर्डर को चैलेंज करोगे तो तब आपको रिट पिटिशन डालना है हाई कोर्ट में. और कौन सा आर्टिकल, 226 220, ये आर्टिकल दोनों को याद रखिए. ओके, आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो अभी आप चैलेंज करोगे CAT ऑर्डर को, चैलेंज करोगे रीट पिटिशन डालकर हाई कोर्ट में, और वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल्स 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है. द हाई कोर्ट कैन रिव्यू CAT's डिसीजन फॉर एनी लीगल और प्रोसीजरल एरर्स, यस ये भी करेक्ट है. कोई लीगल एरर है और कोई प्रोसीजरल एरर है तो वो हाई कोर्ट उसको रिव्यू करेगा. जुडिशियल रिव्यू जो हाई कोर्ट करेगा बेसिकली लीगल मैटर को रिव्यू करेगा, और कोई प्रोसीज्योर रिलेटेड एरर से उसको भी रिव्यू करेगा हाई कोर्ट. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. मगर यहां पर पूछ लिया कि इनकरेक्ट, एक्चुअली ऑप्शन डी नॉन, दोनों करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 37 को चलेंगे. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडिंग CAT वाज पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन,
reducing the scope of judicial review, implementing foreign investment policies, strengthening local government institutions. तो यहां पर आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो बर्डन कम हो गया, क्योंकि अभी सर्विस रिलेटेड मैटर में जब आपका डिपार्टमेंट से आपको जस्टिस नहीं मिला तब आप कैट को जाओगे, तो डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या है, जुडिशियल डिसेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि अभी हम कैट को जाएंगे, डायरेक्टली हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएंगे रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statements about CAT is correct? ठीक है, its decisions can be appealed only in the Lok Sabha, ये भूल है। It has the powers of a civil court under the civil procedure code, ये करेक्ट है। इसका जो पावर है वो सिविल कोर्ट का पावर है, इट हैज द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये करेक्ट है ऑप्शन बी। इट हैंडल्स क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये गलत है। इट कैन अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी, इट कैन अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द, दो प्रकार का मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जुडिशियरी मेंबर, ओनली जुडिशियरी मेंबर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियरी। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कैट एक्चुअली ऑपरेट करता है, कैट का जो पावर है वो सिविल कोर्ट का जो पावर है, सिविल कोर्ट जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है 1908, इसका जो कोड है सिविल प्रोसीजर कोड है, ऑल सिविल कोर्ट्स आर फंक्शनिंग अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, तो उसका जो पावर है कैट का वही पावर होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन 39 को चलेंगे। Which of the following is not true about the cat? False statement देखेंगे। It is bound by the principles of natural justice, ये करेक्ट है। It follows strict procedural rules like regular courts. It follows strict procedural rules like regular courts. No, ये गलत है। It can issue orders, directions or writs, ये करेक्ट है। It functions as a quasi judicial body, एक statutory body है। तो ऑप्शन बी is not true. It follows strict procedural rules like regular courts, ये false है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द कैट एनफोर्स्ड? ओके, बाय इशूइंग अरेस्ट वारंट्स, बाय रिफरिंग द मैटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थ्रू द प्रोसेस सिमिलर टू ए कोर्ट ऑर्डर, थ्रू ए पार्लियामेंट्री कमिटी। तो जो यहां पर जो कैट का डिसीजन जो एनफोर्स होगा वो थ्रू द प्रोसेस सिमिलर टू ए कोर्ट ऑर्डर, जैसे कोर्ट ऑर्डर होता है वैसा ही कैट का ऑर्डर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ए पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ए कैट appear in person, take the assistance of a legal practitioner of his choice to present his case before the tribunal, take the assistance of a officer of government of India of his choice to present his case before the tribunal। देखिए, आप जब एप्लीकेशन डालोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप खुद जाकर अपियर होगे, अदरवाइज ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी लीगल प्रैक्टिशनर। आप खुद चूज कीजिए एक लीगल प्रैक्टिशनर को, ऑन बिहाफ ऑफ यू द लीगल प्रैक्टिशनर एक्चुअली अपियर इन द कैट। तो ये जो है फर्स्ट टू है, आइदर वन और टू, ऑप्शन सी, आइदर अपियर इन पर्सन, ओके, तो आप एप्लीकेशन डाल रहे हो कैट में तो आप खुद जाकर अपियर करोगे, अदरवाइज ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी लीगल प्रैक्टिशनर, यू चूज द लीगल प्रैक्टिशनर, ओके, सो ही फाइट फॉर यू एंड ही अपियर इन द कैट, आइदर वन और टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो 42 को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कैट ऑर्डर्स कैन बी रिव्यूड और मॉडिफाइड? क्या कैट ऑर्डर्स रिव्यू और मॉडिफाई हो पाएगा? हो पाएगा। कभी कभी कुछ प्रोसीड्यूर एरर्स होता है, देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, क्लरिकल और फैक्चुअल ऑर्डर्स आर फाउंड इन द ओरिजिनल ऑर्डर, और देयर इज अ मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये जो तीनों केस में रिव्यू हो सकता है। देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, कोई न्यू एविडेंस का डिस्कवरी हुआ तो उसके वजह से जो कैट का ऑर्डर था वो रिव्यू और मॉडिफाई होगा। कोई क्लरिकल और फैक्चुअल ऑर्डर्स आर फाउंड इन द, सपोज क्लरिकल और फैक्चुअल ऑर्डर्स, ऐसा इसमें कोई फॉल्स आपको मिला, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया, कुछ फैक्चुअल ऑर्डर्स में कुछ मिस्टेक हो गया, और कोई रिकॉर्ड में सपोज आपको मिस्टेक मिला, तो ये तीनों के वजह से एक्चुअली कैट ऑर्डर्स को रिव्यू किया जाएगा और मॉडिफाई किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन है कोई न्यू एविडेंस मिला, और कोई क्लरिकल एरर है कि कोई फैक्चुअल एरर है, कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड में कुछ बाद में ऑर्डर देने के बाद कोई
सपोज रिकॉर्ड में मिस्टेक मिला तो फिर कैट ऑर्डर को रिव्यू और मॉडिफाई किया जाएगा। तो यहां पर जो है ऑप्शन बेसिकली 1, 2 एंड 3 करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे। ए रिव्यू एप्लीकेशन इन कैट मस्ट बी फाइल्ड फॉर द रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर विद इन डैश डेज ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। कैट से आपको ओरिजिनल ऑर्डर मिला, क्या फिर कैट में रिव्यू के लिए डाल सकते हो? आपको ओरिजिनल ऑर्डर मिला, फिर आप रिव्यू करने के लिए कैट को अप्रोच कर सकते हो, तो कितना दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आपको ओरिजिनल ऑर्डर कैट से मिलेगा तो उसको रिव्यू करने के लिए, जब सपोज आप आज मिला आपको कैट का ऑर्डर मिला, तो उसका 30 डेज के अंदर आप रिव्यू करने के लिए कैट को अपील कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। Which of the following tribunals was established under Article 323B of the Indian Constitution? आप जानते हो ये जो आर्टिकल है ये है कैट, इसी आर्टिकल के अंडर कैट को एस्टेब्लिश किया गया था, मगर यहां पर दिया है 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया था 323B में। 323A में कैट को एस्टेब्लिश किया गया था, 323B आर्टिकल में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। हाउ डज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंश्योर स्पीडी जस्टिस डिलीवरी? तो स्पीडी जस्टिस डिलीवरी ओके इंश्योर बाय द कैट by strictly following the code of civil procedure, by adhering to natural justice principles and simplified procedures, by following parliamentary debates and legislation, by involving international arbitrators. Option B is the correct answer. Natural justice principles and simplified procedures, ये दोनों को लेके कैसे स्पीडी जस्टिस को डिलीवरी किया जाएगा, तो कैट सभी समय प्रयास करता है। ओके उसका जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस है और वो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। कैट हैज द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। मैं बताया था जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 ना, सिविल कोड अंडर व्हिच एक्ट? इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अगर यहां पर जो कैट का जो पावर है वो सिविल कोर्ट का जो पावर है उसी के साथ समान है। कौन सा एक्ट ना? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें अदर आप देखिए आईपीसी 1860 है, इसको भी याद रख सकते हो क्वेश्चन। आईपीसी 1860, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसको भी याद रख सकते हो। मगर कैट का जो पावर है, सिविल कोर्ट का जो पावर है, कैट का वही पावर है, और सिविल कोर्ट की कैट का जो पावर है वो यही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 47 को चलेंगे। If an authority fails to comply with CAT's order, dash can be initiated against the authority. यदि CAT ऑर्डर दिया, अथॉरिटी उसको कंप्लाई नहीं किया, तो यदि कंप्लाई नहीं करेगा हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो जाएगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगा अगेंस्ट द अथॉरिटी। क्योंकि आप जानते हो कभी हम कोर्ट का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करेंगे। ओके सपोज CAT ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट उसको कंप्लाई नहीं किया, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगा। क्योंकि जब आप कोर्ट का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि उसका जो पावर है सिविल कोर्ट जैसा पावर है, आप वो ऑर्डर दिया उसको कंप्लाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। द कैट एक्सरसाइजेस व्हिच टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन? एडवाइजरी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओवर सर्विस मैटर्स, अपीलेट जुरिसडिक्शन ओवर क्रिमिनल केसेस, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओवर सर्विस मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 49 को चलेंगे। यहां पर दे दिया क्या नहीं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज फाइल ए जॉइंट केस इन कैट। क्या आप जॉइंट केस फाइल कर सकते हो? तो इसमें जॉइंट केस फाइल हम कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ ऑप्शन है। जॉइंट केस आप जॉइंटली फाइल कर सकते हो, मगर आप सेम सर्विस कंडीशन है और आपका जो है सेम कैटेगरी, आप जो है जब आप जॉइंट केस डालेंगे सेम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज है और उनका सर्विस कंडीशन सेम है,
उस केस में आप जॉइंट केस डाल सकते हो कैट में। तो ऑप्शन ए एस, ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज फेसिंग ए कॉमन सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस, कॉमन सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस कैन फाइल ए जॉइंट एप्लीकेशन provided they belongs to same category and share similar service conditions. Option B is a group of employees facing a common service related grievance can file an individual application. Individual application नहीं, गलत होगा. Provided they belongs to same category and share similar service conditions. No, cannot file joint case. Yes, after thoroughly peruse of the case by CAT. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप कोई कॉमन सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस है, कॉमन सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस है, आप जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हो, मगर यहां पर जो एम्प्लॉइज देंगे वो सेम कैटेगरी है और उनका सर्विस कंडीशन सेम है, तो इस कंडीशन में आप जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हो. तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 को चलेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स फंक्शंस सिमिलर टू कैट बट डील्स विद मिलिटरी पर्सोनल. सो सिमिलर आप जानते हो, जैसे स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, वैसे मिलिटरी केस में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, उनका जो ट्रिब्यूनल अलग है. वो आर्म फोर्सेस वो कैट के अंडर, कैट का जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे. जो आर्म फोर्सेस का जो एम्प्लॉइज है उनके लिए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो 51, क्वेश्चन नंबर 51. विद इन हाउ मेनी डेज an appeal against the order of the CAT must be filed in the high court. यदि आप कैट का ऑर्डर जो है, आप कैट का ऑर्डर का अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट जाओगे, अपील करोगे, रीट पिटीशन डालोगे, कितना दिन के अंदर, जब आपको कैट ऑर्डर मिलेगा उसका 90 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में ओके अपील कर सकते हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू. ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52. Qualifications for appointment of a chairman, vice chairman and other members of Central Administrative Tribunal is mentioned in which section of the Administrative Tribunal Act 1985. जैसे चेयरमैन अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, वाइस चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, जुडिशियल मेंबर है, ये कौन सा सेक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया है 1985, वो कौन सा सेक्शन. तो याद रखिए सेक्शन 6 में क्लियरली मेंशन है कि चेयरमैन उनका क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या कितना मिनिमम एज होगा, कितना एज तक वो काम कर सकते हैं, उनका टेन्योर क्या है. ठीक है, ये सब डिटेल्स दिया है सेक्शन 6. आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का सेक्शन 6 देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53 को चलेंगे. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 shall not be applicable to which among the following employees. देखिए किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एनी ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ एनी हाई कोर्ट, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं है. मैं बताया था, चाहे सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज, हाई कोर्ट एम्प्लॉइज, पार्लियामेंट एम्प्लॉइज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एम्प्लॉइज, आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉइज, उनके लिए कैट एप्लीकेबल नहीं है. कैट का जुरिस्डिक्शन में वो नहीं जाएंगे. तो यहां पर वही दिया है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल. तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 इज एक्ट नंबर डैश ऑफ 1985. आप क्लियरली देखिए उसका गेजेट नोटिफिकेशन, एक्ट नंबर 13, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 एक्ट नंबर 13 देखिए क्लियरली मेंशन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो 55. ए बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन जुडिशियल मेंबर, वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए और बी. आप जानते हो कि जो बेंच है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मिनिमम वन जुडिशियल मेंबर, वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेंगे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जुडिशियल मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है, एटलीस्ट रहेंगे. तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 56. A person shall not be qualified for appointment as an administrative member unless a person, अच्छा administrative member के लिए क्या qualification? He has held for at least 2 years of the post of secretary. Okay, to the government of India, correct है. He has held any post under the central or state government and carrying the scale of pay which is not less than that of a secretary to the government of India. ठीक है. held a post of additional secretary to the government of India for at least 5 years, ये ठीक है. तो
ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अनलेस, तो ऑप्शन तो एनी ऑफ द अबव। इसमें याद रखिए कोई पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी है 2 इयर्स, कोई पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट में कोई पे पोस्ट में है, उसका स्केल ऑफ पे जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पे स्केल से कम नहीं होगा। और एडिशनल सेक्रेटरी आप लेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, अदरवाइज आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के आकर में चूज नहीं हो सकते। और मिनिमम एज जो है आप मेंबरशिप के लिए कि चेयरमैन के लिए 50 ईयर्स है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन जुडिशियल मेंबर रिलेटेड है। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जुडिशियल मेंबर अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ये करेक्ट है। He has for at least 2 years held the post of a secretary to the government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member Secretary, Law Commission of India, ये भी ठीक है। He has held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs and Legislative Department at least for a period of 5 years, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जुडिशियल मेंबर के लिए आप हाईकोर्ट जज होना जरूरी है, जैसे सिटिंग है कि रिटायर्ड है, और आप सेक्रेटरी लेवल पोस्ट में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, ओके, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मेंबर सेक्रेटरी आप है लॉ कमीशन में, तो हो सकता है एटलीस्ट 2 इयर्स पोस्ट में रहेंगे सेक्रेटरी पोस्ट में। और एडिशनल सेक्रेटरी के आकर में काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की वही लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो आप जुडिशियल मेंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, चेयरमैन एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ, मैं बताया था जो स्टेट का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसका चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है कि जुडिशियल मेंबर है, उनको अपॉइंटमेंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मगर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 59, what is the limitation period for filing of appeals against an order before CAT under section 21 of Administrative Tribunal Act? जैसे आप पूरा सभी आप फर्स्ट आप डिपार्टमेंट को जाएंगे सर्विस मैटर में, तो जितना ग्रीवेंस मैकेनिज्म था वो सब खत्म हो गया। अभी आप क्या करेंगे, CAT से सपोज आपका डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर मिला, डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर मिला, जब डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर मिलेगा उसका 1 ईयर के अंदर आप CAT को जाएंगे। ठीक है, और एक है यदि आप कोई अपील किया, आपका डिपार्टमेंट में अपील किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर 6 मंथ्स तक वो रिजल्व नहीं हुआ, आपका डिपार्टमेंट को अपील किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर 6 मंथ्स में वो रिजल्व नहीं हुआ, तो तब जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया उससे 1 ईयर के अंदर आप कैट जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये सेक्शन 21 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हिच सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट गिव्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट? कंटेम्प्ट क्या है, कैट ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट को, मगर द डिपार्टमेंट एक्चुअली डज नॉट कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द कैट, वो कैट का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगा। तो ये सेक्शन 17 देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है, इसमें सेक्शन 17 में क्लियरली मेंशन है। तो यदि अथॉरिटी ने कैट का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, तब सेक्शन 17 के अंडर में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगा। तो यह 60 क्वेश्चंस था, ये पार्ट 1 का था लीगल मैटर्स। अभी और मैं अच्छा चीज लाऊंगा सिविल कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, और रिलेटेड तो कैट ऑल्सो, बिकॉज मेजोरिटी डिपार्टमेंट एग्जाम में इसी रिलेटेड में आता है। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उससे हम हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएंगे सर्विस मैटर्स में। तो कभी कभी क्वेश्चन आप पूछते हो कि लीगल मैटर्स है जो सिलेबस में, वो क्या होगा? अरे ये सब है लीगल मैटर, सर्विस मैटर्स में यदि हमारा ग्रीवेंस रिजल्व नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट से, तब हम कैट जाएंगे। ठीक है, फिर हम जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओके, तो और मैं एमसीक्यूज लाऊंगा। आज ये मेरा फर्स्ट एमसीक्यू था, 60 क्वेश्चंस
रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स, और ये पूरा कैट के ऊपर था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर। मुझे लगता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला। सो प्लीज माय फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification, and other of your friends also, they can get benefit. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।